یہاں سے جو ہم شروع کر رہے ہیں یہ پہلا قدم ہے اس پروٹیسٹ کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. پشاور میں بھی ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے وہاں سے، اور شہروں میں بھی آپ دیکھیں گے. آپ وہ امپیکٹ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کے لیے آپ کی تنظیموں نے یہ منصوبہ بنایا ہے. بالکل، یہ دیکھیں آلریڈی پاکستان میں یہ کوریج جو نہیں ہوگی میڈیا پہ، یہ آپ کی پہلی خبر، وہ آپ بتائیں لوگوں کو کیا کہنا چاہتی ہے. یہی کہ پاکستان کے میڈیا اور چینلز کو یہی بتا دیا گیا ہے کہ یو کی ناٹ کور پاکستان، امریکہ کی پروٹیسٹ کو کور نہیں کر سکتے. ہماری جو پروٹیسٹ ہے آرگنائزڈ ہے، انشاءاللہ 4 بجے کا ہم نے لوگوں کو کہا ہے وہاں پہنچنے کے لیے. ایمبیسی کے، پاکستان ایمبیسی کے سامنے جتنی رسپانس ہے لوگوں کی، اٹ از امیزنگ. میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ کس طرح لوگ ہمیں مختلف شہروں سے، مختلف اسٹیٹ سے بار بار کالیں کر کے پوچھ رہے ہیں. Huge protest, which I have no doubt that people of Pakistan in America are going to wage a big war against violations of human rights in Pakistan. یہاں پہ جیسے مسلم لیگ این ہے، بریانی کی پلیٹ میں لوگوں کو لے کے جاتے ہیں کہ لوگ خود بخود اس احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں. 4 ڈفرنٹ اسٹیٹ سے بسز جو ہیں وہ آ رہی ہیں لوگوں کی بھری ہوئی. انہوں نے 5-5 6-6 بسز ارینج کی ہیں. اتحاد ٹاؤن سیالکوٹ، مین سیالکوٹ دسکا روڈ پر واقع سیالکوٹ شہر کا موسٹ لگژریس لیونگ پروجیکٹ. 5، 10 اور 20 مرلہ کے ریزیڈینشل پلاٹس، 4، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس. 3 سال کا آسان پیمنٹ پلان انکلوڈنگ آل ڈیولپمنٹ چارجز اور بکنگ صرف 15% سے. اتحاد ٹاؤن سیالکوٹ. فار بکنگ اینڈ ڈیٹیلز 05211998877. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری غلام حسین صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سجاد برقی صاحب، اوورسیز پاکستانیوں کے سیکرٹری ہیں. انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں میڈم ڈاکٹر سندس علی جو پی ٹی آئی کی کوآرڈینیٹر ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم کا. یہ سندس نے پہلے ہی کالے کپڑے پہن لیے، ابھی سے پروٹیسٹ شروع ہو گیا. سجاد برقی صاحب، آپ 16 جون کو جو آپ 4 بجے امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے، یہ کتنی بڑی تعداد میں احتجاج ہوگا اور کن کن ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں اس احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں؟ سر آپ پیسہ کتنا خرچ کر رہے ہو؟ سانوں تو کوئی نہیں آج تک دیتا، لیکن چلو کسی پاس سے لگے ہو نا. نہیں جی، کوئی اس پہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو چوہر صاحب آپ کو، بلاول، میڈم سندس، ایوری بڈی، اور ہمارے جو دیکھ رہے ہیں پروگرام، تھینک یو سو مچ ونس اگین. پہلے تو میں کریکشن کر دوں بلاول آپ کے سوال کی. سب سے پہلے 14 جون سیٹرڈے کا دن ہے ہمارا پروٹیسٹ کا واشنگٹن ڈی سی میں، اور ہم نے یہ دن اس لیے چنا تھا کیونکہ ہمیں انیشلی یہ خبر آئی تھی کہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں 14 کو، اور وہ 14 کو وہاں پہ ایمبیسی میں ایک ڈنر ہوگا. تو ہم نے سوچا کہ وہ بہت موزوں ٹائم اور جگہ ہے جہاں پہ سب پاکستانیوں کو ہم کہیں کہ وہاں پہ آ کے پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ کریں. لیکن اب شاید پروگرام ان کا پتہ نہیں کس طرح چل رہا ہے، کچھ ابھی کانفرمیشنز نہیں آ رہی. حالانکہ اسی دن وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں پریڈ بھی ہے، تو بڑا اٹ بی اے ویری بزی ڈے ان واشنگٹن. لیکن ریگارڈلیس جی، ہماری جو پروٹیسٹ ہے آرگنائزڈ ہے. انشاءاللہ 4 بجے کا ہم نے لوگوں کو کہا ہے وہاں پہنچنے کے لیے ایمبیسی کے، پاکستان ایمبیسی کے سامنے. اور چوہر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جتنی رسپانس ہے لوگوں کی، اٹ از امیزنگ. میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ کس طرح لوگ ہمیں مختلف شہروں سے، مختلف اسٹیٹ سے بار بار کالیں کر کے پوچھ رہے ہیں. لوگوں نے، میں 4 ڈفرنٹ اسٹیٹ سے بسز جو ہیں وہ آ رہی ہیں لوگوں کی بھری ہوئی. انہوں نے 5-5 6-6 بسز ارینج کی ہیں. لوگ جو دور کے ہیں وہ فلائٹس obviously لے کے آئیں گے، اور جو لوکل ہیں وہاں کی جو 3 اسٹیٹس ہماری جو ہے ڈی ایم وی جنہیں بولتے ہیں، ڈی سی، میریلینڈ، ورجینیا، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تو آلریڈی اور انہی کے وہی ہوسٹ ہیں ہمارے، اور بلکہ سب سے بڑے ہمارے ہوسٹ ہیں جو پی ٹی آئی ڈی سی کے لوگ ہیں، اور ہماری جو اور آرگنائزیشنز ہیں
जो अच्छी बात है ना जी इसमें कि ये वाला प्रोटेस्ट कोई सिर्फ पीटीआई नहीं कर रही है, ये जनरल पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है यहाँ पे और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस है वो सब इसमें शामिल हैं। सब ने इस प्रोटेस्ट को एंडोर्स किया है और मकसद क्या है एंडोर्स इसको प्रोटेस्ट को करने का कि हम इमरान खान की सपोर्ट में खड़े हों, हम इमरान खान के जो वहां पे जो उस पर जुल्म किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, हम वहां की जुडिशरी के खिलाफ जो काम हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, हम जो वहां पे एक फैशिस्ट हुकूमत बैठी हुई है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, हमारा जो मैंडेट चोरी किया गया है इलेक्शंस में उसके खिलाफ आवाज उठाएं और सबसे ज्यादा व्हाइट हाउस उसको ये पैगाम पहुंचाएं कि अगर आप कोई भी डील्स करेंगे तो वो डील्स पाकिस्तानी कौम को एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। तो इट विल बी इंशाल्लाह वेरी बिग प्रोटेस्ट। हम उम्मीद कर रहे हैं देयर विल बी thousands of people there in the protest और माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल प्रोटेस्ट होगा ये। आप समझते हैं कि 5 से 10 हजार या ज्यादा बंदा इकट्ठा हो सकता है? ये तो अब इंशाल्लाह जी उम्मीद तो हमारी है कि 5-1 हजार बंदा जरूर होना चाहिए वहां पे। देखते हैं कितने लोग आते हैं। चैलेंज है ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए जो अमेरिका में रहते हैं और खास तौर पे वो लोग जो डीसी वर्जीनिया मेरीलैंड के एरिया में रहते हैं या नेबरिंग न्यू जर्सी में, लेकिन न्यूयॉर्क भी तो बहुत दूर नहीं है जी। माशाल्लाह जी न्यूयॉर्क से बिल्कुल बसें आ रही हैं, न्यू जर्सी से बसें आ रही हैं और खुद तो लोग आपको पता ही है ट्रैवल करते हैं। आपकी जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर सुंदर वो तो आ नहीं रही, वो न्यूयॉर्क के साथ ही एक जगह वहां से है, तो फिर और कौन आएगा? जरा उनसे पूछ लेते हैं कि भी क्या तैयारी है, आ रहे हैं लोग कि नहीं आ रहे, व्हाट इज दी ले ऑफ द लैंड एज ऑफ दिस मोमेंट, क्योंकि 4 बजे जो आपका टाइम है पाकिस्तान में उस वक्त क्या टाइम होगा? मेरा ख्याल रात का टाइम होगा यहाँ पे आपके लिए, तो मैं एग्जैक्टली नहीं, मैं क्योंकि डिफरेंट टाइम्स हमारे होते हैं वॉशिंगटन डीसी के टाइम के मुताबिक। सुंदर विल प्रॉब्ली नो बेटर क्योंकि ये उसी टाइम जोन में रहती हैं जी। उस वक्त आपके रात के 1 बजे होंगे। तो आप तो आ नहीं रही, वैसे कपड़े आप लग रहे हैं कि जैसे आपने डालकर पहने हैं। नहीं, ये आपको किसने कहा कि मैं नहीं जा रही? नहीं, हमें आपकी मतलब जसूस छोड़े हुए वहाँ। अच्छा बात करें अभी क्या वो सजाद बरकी साहब तो माशाल्लाह एज यूजुअल बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े चार्ज हैं, बड़ी और कोशिश कर रहे हैं और ही थिंक्स इट विल बी अनप्रेसिडेंटेड शो ऑफ strength by PTI and allied forces and all human rights watchers और activists, सारा अमेरिका जो है इस पर लग गया है, बल्कि हमें तो बियॉन्ड भी पता चल रहा है कि लोग अपने खर्चे पर आ रहे हैं। तो ये डॉक्टर सुंदर सली आपके पास अब इस वक्त तक बड़ी इस प्रोटेस्ट के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की जान इमरान खान के हवाले से अभी तक बड़ी खबरें क्या है शेयर करें, क्योंकि सजाद बरकी तो अब एक लेजेंड बन गए हैं, तो उनसे हमने दोबारा फिर काफी बातें पूछनी है, बट वी वांट यू टू contribute your thoughts and your action and whatever you have heard about the protest, please share with our viewers. जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए ये प्रोटेस्ट इस टाइम पर जरा ऊंची आवाज करें, अभी आपकी बैठ के मैं तो यही हैरान हूँ। और बरकी साहब देख लो, ये देखो यार आगे नहीं, उधर स्विमिंग भी जा रही है, उधर बच्चे को लेके जा रही है, उधर वो फैमिली के साथ वो तस्वीरें फेसबुक, यानी ये इनकी कारकर्दगी है। नहीं चौधरी साहब ये अपनी एनर्जी जो है ना उसको सेव कर रही है प्रोटेस्ट के दिन के लिए। जी बिल्कुल। देखिए प्रोटेस्ट का जो अभी तक देखिए ये सबसे ज्यादा अहम इसलिए इस टाइम पे क्योंकि एक तो ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जैसे कि बरकी साहब ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस जो इकट्ठी हो रही हैं, दैट्स शोइंग अस कि इट्स नॉट जस्ट अ पीटीआई एफर्ट बट इट्स अ ऑल पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज एफर्ट। जो अभी पिछले 2-3 महीने में जो यहाँ पे एक बहुत डिविजन आई थी कम्युनिटी में, मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट विल बी अ स्टेटमेंट और ये सब दिस विल गो लाउड एंड क्लियर कि एक्चुअली अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी अभी भी यूनाइटेड हैं और अभी भी इकट्ठे खड़े हैं और हजारों में इंशाल्लाह वहां पे टर्न आउट होगा। और जो पाकिस्तान में कल हुआ है, लेकिन जून 11 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगेन वो जुडिशरी सिस्टम का एक मजाक ही बनाने वाली बात है और अब 26 जून की जो डेट दी गई है, तो ये प्रोटेस्ट एक बहुत टाइमली इस टाइम पर
कि उनको ये हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हम भी देखें, आपके शहरी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, वी वांट टू वर्क विद यू, लेकिन आप हमारे जो वैल्यूज हैं पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जुडिशरी का कोई, जजेस को कोई राइट्स नहीं है कि अपने इंडिपेंडेंटली कोई फैसले करें, तो हम आपके साथ मिल के पाकिस्तान को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं, स्पेशली इस तरह के माहौल में जब इंडिया इज अ कॉन्स्टेंट थ्रेट। सो इसमें बिल्कुल बसेस आ रही हैं हर जगह से, और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नाम आपने देखे भी होंगे, बट फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल। डॉक्टर सुंदर सली, जी, बसें जो आ रही हैं, क्या वो आप डॉलर दे के ला रहे हैं लोगों को? यहाँ पे जैसे मुस्लिम लीग एन है, बिरयानी की प्लेट में लोगों को लेके जाते हैं, क्या लोग खुद ब खुद इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं? बिलावल, सब लोग खुद वॉलंटियर कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे है कि कुछ लोग, हर बंदा अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो कुछ लोग दे आर फंडिंग, जो वैन्स वहां पे चल रही थी वॉशिंगटन डीसी में, जो आपने देखी होंगी विद द पिक्चर्स, कुछ लोगों ने उसको फंड किया है, कुछ लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अरेंज कर रहे हैं। तो ये खुद से लोग अपने आउट ऑफ देयर पॉकेट वो खुद से पैसे लगा रहे हैं ताकि लोगों के लिए आसानी हो सके वहां पे पहुंचना, बिकॉज न्यूयॉर्क से यहाँ से 4-5 घंटे हैं, लेकिन कुछ लोग 12-12 घंटे। अच्छा, स्ट्रेट सवाल है। चौड़ साहब, अगर इजाजत दें तो मैं भी एड्रेस कर दूं इस बात को। मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूं कि कोई भी हमारी तरफ से, पीटीआई की तरफ से कोई ऐसी फंडिंग अवेलेबल नहीं है कि हम लोगों के लिए बसें अरेंज करें या उनके लिए खाने अरेंज करें या और उनकी रिहाइश अरेंज करें। ये सारी की सारी एक्टिविटी लोग अपने बिहाफ पे करते हैं। हर शहर के लोग खुद से ग्रुप्स हैं बने हुए, और वो लोग आपस में कंट्रीब्यूट, या कोई एक वॉलंटियर कर देता है, और अपने माशाल्लाह बिजनेसेस हैं लोगों के जिनके पास वहां पे ये बसेस और वैन्स अवेलेबल है, तो उन्होंने ये सब चीजें वॉलंटियर की हैं हमें। अच्छा सजाद बरकी साहब, पहले मैं आपसे 4 सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि यू आर सीनियर मोस्ट पीटीआई पर्सन हु इज वेल वर्स्ड with developments inside Pakistan and US and elsewhere. तो आपसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट और रादर अथॉरिटी हमारे पास नहीं है कि ये सारी। पहली बात तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान और जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, ये जो उनका दौरा है, उनके साथ जो भी जा रहे हैं हमें नहीं पता, अभी इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि आज तो वो यूएई में प्राइम मिनिस्टर के साथ मौजूद थे। हो सकता है वो वहां से चले जाएं या फिर पाकिस्तान आके और जहाज जाएं, हमें इससे गर्ज नहीं है। नंबर 1, आया इन द वेक ऑफ दिस ह्यूज प्रोटेस्ट which I have no doubt that people of Pakistan in America are going to wage a big war against violations of human rights in Pakistan. इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है। नंबर 1, और उसका मैं अभी जस्टिफिकेशन भी बताऊंगा। आया पाकिस्तान से आपको कोई इतला मिली है या वॉशिंगटन में, अमेरिका में या न्यूयॉर्क में, एल्सवेयर, यानी हुकूमत के या एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने सजाद बरकी या जो 12 तंजीमें इकट्ठी हुई हैं, इनसे रब्ता किया कि जी आप प्रोटेस्ट को पोस्टपोन कर दें, आपके जो मुतालबे हैं वो हम तस्लीम करने को तैयार है? आया ऐसी कोई बात हुई है? नंबर 2, पहले भी ये लोगों को लंबा पैसा दे के सरकारी और एजेंसियां और लोग जो है लोगों को डराने में भी और उनको मुजाहरे करने से भी रोकने के लिए बड़े पापड़ बेलते रहे। अब अभी इस वक्त उनकी, मेरा ख्याल है उनकी एफर्ट किस लेवल की है? नंबर 2, अब वो इसको बुला के, ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ये है कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान की ने जंग जीती है वो इन्होंने कोई जाती कारनामा अंजाम दिया है। हालांकि अगर किसी ने इस पर काम किया है, डट के पाकिस्तान का मौका दिया, तो वो इमरान खान और पीटीआई है। इन्होंने तो दंदल पे ही होती है बरकी साहब, ये मोदी इन्होंने मामा लगता है, ਉਹਦਾ नाम तक नहीं लेंगे यानी। नंबर 2, नंबर 3, आया ये जो डेलीगेशन आ रहा है, आर दे अप्रोचिंग सजाद बरकी एंड अदर्स के जनाब बातचीत में बैठ के कर लेते हैं, आपका भी मुल्क उतना है, हमारा भी है, तो हमारा आपसे कोई सियासी तनाज़ा नहीं है, तो हमारा तो फौज का अदारा है जो सारे मुल्क की। इमरान खान कहता है कि आप फौज हमारी है और मुल्क हमारा है, तो ये जो आपकी पॉलिसी है उसी के तहत जो आपके मुतालबे हैं, वी आर विलिंग टू सिट विद यू। नंबर 4 और आखिरी, और आया ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो हमें 6 महीने 7 महीने 8 महीने हो गए उनको इलेक्ट हुए, नवंबर 1 वीक से लेके,
8 महीने तो तकरीबन हो चले हैं। जी उन्होंने अपनी पॉलिसी को डिपार्चर करके अपने मुल्की मफादात के पेश नज़र उन्होंने पीटीआई और अलाइड जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं और पाकिस्तानियों की तंजीमें हैं उनको डिच कर दिया है और उल्फत की नई मंजिल को चला तू बाहें डाल के बाहों में है, दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पड़े हैं राहों में। तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली है लेकिन अभी रहते हैं, पर प्लीज गिव मी आंसर्स व्हिच यू वांट टू गिव। एक्सेल केबल्स 99.99% प्योर कॉपर से तैयार शुदा, हमारा मयार, हमारा यकीन। एक्सेल केबल्स, रोशन पाकिस्तान की पहचान। जी बिल्कुल चौधरी साहब, बड़े आपके जितने सवाल हैं ये सब लोगों के जहन पे ये बातें हैं और हम भी इनको कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं, एड्रेस भी करते हैं। पहली बात जैसे आपने पूछा कि क्या हमारे से कोई एम्बेसी ने या यहाँ की ये जो उनकी लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी ने हमें कांटेक्ट किया, तो उसका जवाब बिल्कुल नो में है। कोई हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ही उन लोगों ने कोई हमें मना करने के लिए कहा है प्रोटेस्ट का, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है कि वो इस प्रोटेस्ट में किसी तरह से भी इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। तो और वो कर भी नहीं सकते हैं, हमारा राइट है इस मुल्क में रहते हुए कि हम अपना प्रोटेस्ट जो है वो जब भी चाहें हम करें उसको, और जहां भी चाहें हम करें। दूसरी बात आपने जिक्र किया कि ये जो चेंज आया है इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद, एक नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की गई थी, और मैं समझता हूं कि बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप था पीटीआई का इस सिलसिले में। हमारी पार्टी ने, हमारी लीडरशिप ने भरपूर तौर पे कौम के साथ मिलके खड़े होके हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाई। हमारे सोशल मीडिया ने बहुत मेहनत से काम किया उसका नैरेटिव बिल्ड करने के लिए उस वक्त, और हम समझते थे कि ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है जो गवर्नमेंट को दिया गया कि देखें हम आपके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ तो हैं ही हमेशा से, लेकिन हम आपकी भी मदद करने को तैयार हैं अगर आप हमारे साथ एक डेमोक्रेट के तरीके से मिलकर काम करने की कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा हुआ नहीं। वो पाबंदियां उन्होंने और ज्यादा बढ़ा दी हमारे पे, अरेस्ट हमारे लोग और ज्यादा करने शुरू कर दिए, इमरान खान के लिए सख्तियां और ज्यादा कर दी, तो बड़ी अफसोसनाक बात। तीसरी बात आपने पूछी कि क्या यहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रंप की या व्हाइट हाउस की या और कोई वो हमें अप्रोच कर रहे हैं टू, या ये जो आ रहा है डेलीगेशन वहां से वो हमारे साथ बैठ के बात करेगा या नहीं। देखिए चौधरी साहब, एक तो जैसे मैंने पहले कहा हमारा कोई कांटेक्ट भी नहीं है। मेरे से अगर सच पूछें तो मैं समझता हूं कि हम वो अप्रोप्रिएट पार्टी नहीं है जिनके साथ बैठ के बातचीत की जाए। अगर किसी ने लीडर बात करनी है तो लीडरशिप के साथ बात करें, पाकिस्तान में इमरान खान के साथ बात करें। अगर इमरान से नहीं करना चाहते तो इमरान खान की फैमिली, उसकी बहनें माशाल्लाह मौजूद है वहां पे, उनके साथ बैठ के बात करें। देखिए हम लोग तो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, हम कोई किसी के लिए बैठ के कोई डील नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमारा राइट नहीं है। ये राइट पाकिस्तानियों का है, हमारी लीडरशिप का है, और वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका ये राइट है। हम मशवरा जरूर दे सकते हैं, हम फैसिलिटेट जरूर कर सकते हैं इन सब चीजों को। इसीलिए हम अपने कांग्रेस में, सेनेटर्स में, व्हाइट हाउस में जाते हैं उनको ये पुश करने के लिए कि देखें आप पाकिस्तान की पॉलिसी पे नजरसानी करें, उसको ठीक करें। और वो लीडिंग इनटू आपने जो चौथी बात फिर की कि क्या ट्रंप ने जो हमारे से वादे किए थे या पार्टी ने लगता था कि वादे किए हैं, क्या वो उन वादों पे कायम नहीं है, तो मैं उसमें यही कहूंगा कि देखें सियासत एक ऐसी चीज है कि जिसमें कि वोट लेने के वक्त सियासतदान बहुत से वादे हमेशा किया करता है, और वोटर जो है वो इसी उम्मीद से उसकी सपोर्ट करता है और वादे और उसको वोट देता है कि ये पॉलिटिशियन जो है वो मेरी बात को रखेगा और मेरा मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट करेगा। अगर वो उन अपने जो प्रिंसिपल जो उन्होंने उस वक्त ले आउट किए थे और जो वादे किए थे वो उसके खिलाफ जाएंगे, तो एक अच्छी बात जरूर ये है कि इस मुल्क में हर 2 साल के बाद इलेक्शन होता है। लोग समझते हैं 4 साल बाद होता है, नहीं, हर 2 साल के बाद इलेक्शन होता है। कांग्रेस हर 2 साल के बाद इलेक्ट होती है, तो हमें फिर मौका इंशाल्लाह मिल जाएगा 1-1.5 साल में
कि हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें और ये शो कर सकें कि हम किसको सपोर्ट करेंगे। आपकी कोई अभी भी एप्रीहेंशन है या यू आर जस्ट सेइंग थिंग्स एट द फेस ऑफ इट? मैं तो जी नहीं, एट द फेस ऑफ इट मैं कह रहा हूँ, मैं अभी भी समझता हूँ कि कोई नथिंग इज लॉस्ट येट। मैं समझता हूँ कि अल्ले बेराना कुछ नहीं बिगड़िया ਤੁਹਾਡੇ ख्याल से? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आई थिंक अभी भी जो हमारा मौकफ है वो बिल्कुल सामने है व्हाइट हाउस के, और वो देखे वो इस वक्त ना पाकिस्तान, इंडिया, अच्छा चाइना बरकी साहब, तो बैलेंस करना चाह रहे हैं। सजाद बरकी साहब और डॉक्टर सुंदर अली और बिलावल जॉय साहब, जो हमें पता है कि पीटीआई से ज्यादा किसी की ताकत नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं है, पावर नहीं है, इमरान खान से बड़ा लीडर इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में नहीं है। ही इज ग्रेट हीरो ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, और पाकिस्तानियों का तो वो जिन जान है और लोग उनकी जान से एक ही तरीका है, आप सारे 100-150 जिले जितने भी है पाकिस्तान के, वहाँ हेडक्वार्टर्स पर कहीं सजाद बरकी, कहीं सुंदर, कहीं ए, कहीं बी, कहीं सी, सारी जगह अपने पहले जलसे करें। उसके बाद एक गिवन डेट को एबटाबाद में या मंसारे में या हरीपुर में या लकी मरवल में या बन्नू में यानी अटक के सामने स्वाबी में या डीआई खां के यानी डीजी खां के सामने जो है, मैं बात जो कर रहे हैं आप रजिस्टर करें। कोई बंदा जो आपकी पार्टी के साथ बहुत सिंसियर है, इमरान खान को कौमी हीरो और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोहब्बत समझता है, वो कहता है इनको चाहिए एक जगह बंदे इकट्ठे करें, जो 10 लाख करना भी 20 लाख करना भी पीटीआई के लिए नामुमकिन कोई चीज नहीं है। तो वो फिर वहां अल्टीमेटम दे कि इमरान खान को रिहा करें, तमाम कैदियों को रिहा करें और हमारा मैंडेट वापस करें और आइन और कानून की तरफ वापसी का सफर हो पाकिस्तान का। तो फिर नहीं तो हम ऑन फुट और व्हाट एवर मीन्स वी आर कमिंग, और फिर हम बैठ जाएंगे सारा घेराव करके इस्लामाबाद पिंडी का, तो फिर देखी जाएगी आप क्या करते हैं। तो वो आप इसको इस पर कान नहीं धरते, हम नया तरीका ढूंढ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सिर कोती तक ढूंढ रहे हो। लीडर उसे इस 50 दर्जे ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਡਰਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੈਥ ਸੈਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਪੁਸ਼, और अदालतें तबाह हो चुकी हैं, सिस्टम बैठ चुका है और ये दंदनाते फिर रहे हैं। तो बात यह है कि आपने रास्त इकदाम के लिए कदम उठा लिया है, उठाने वाले हैं, या ये तक आनियां जानियां वेखिए थोड़ियां। बरकी साहब तुम भी फरमाओ, और मोहतरमा भी अगर कोई ऐड करना चाहो, और बिलावल साहब भी। जी सर, मैं क्विकली मैं एड्रेस करता हूँ। देखिए चौधरी साहब, ये जो हमने इसीलिए ये जो हमारी प्रोटेस्ट है 14 की, हालांकि ये रखी गई थी कि तो उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट होगी, लेकिन हमने फिर फैसला किया कि नहीं, चाहे वो आए या ना आए, जिस दिन भी वो पहुंचते हैं ये प्रोटेस्ट होगी। और ये प्रोटेस्ट पहला कदम है। अपनी पार्टी ने डिसोन कर दिता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ नहीं सर, वो लीगल इश्यूज हैं जिसकी वजह से उनको वो नहीं कर सकते, उनकी भी मजबूरियां हैं वहां पे। खैर, कहने का मकसद है कि ये इसको यही समझें कि यहाँ से जो हम शुरू कर रहे हैं ये पहला कदम है उस प्रोटेस्ट का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह आपने देखा कि पेशावर में भी हो रही है, शुरू हो रही है वहां से, और शहरों में भी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन में बहुत से शहरों में हमारी प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो जाएंगी। और ये एक जैसे कि खान साहब ने कह भी दिया, लीमा पापा ने कल बताया भी है कि जी अब सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, अब और जगहों पे और शहरों में इंशाल्लाह ये सारी जगह प्रोटेस्ट होगी, और ये फिर बिल्डअप होगा। जैसे आपने कहा कि ये बिल्डअप होगा, कौम हमारे साथ है, और इंशाल्लाह वो कौम इनको मजबूर कर देगी कि आप ये इनकी जो जी डॉक्टर सुंदर अली, आप लास्ट में कुछ कहना चाहें? और बरकी साहब कल भी जरा 10 मिनट रखना है तुझी। ओके जी। जी देखिए, इसमें जैसे कि बरकी साहब ने कहा कि दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ अ मच बिगर मूवमेंट। पाकिस्तान में जो तहरीक स्टार्ट करनी है वो यहाँ पे अमेरिका से आवाज जब जाएगी, क्योंकि एक तो देखिए चौधरी साहब, अभी कुछ महीनों में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का होपफुली हम उसके लिए भी लॉबी कर रहे हैं, तो वो अभी कुछ चीजें आ रही हैं, तो ये उसका एक हिस्सा है। और अभी ज़ल्मे खलीलजाद ने जो अपने ट्वीट में कहा है कि देयर इज कमिंग टू जो चीजें डिस्कस करनी है यूएस के साथ, वो अपनी इंटरेस्ट को पाकिस्तान में यूएस की इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए, यूएस और चाइना के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये पॉलिसी शिफ्ट हमें नजर आ रहा है
जो ज़ल्म खलीलजाद जैसे रिप्रेजेंटेटिव की ये बात करना बहुत बड़ी बात है। तो वी हैव टू बी एक्चुअली कॉन्शियस एंड प्लान फॉर द फ्यूचर कि यहाँ पे पाकिस्तान तो एक पॉलिसी शिफ्ट उनका अमेरिका के साथ बहुत अच्छी पॉलिसी वो बनाने आ रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन जो ग्राउंड रूट में रियलिटीज हैं वो नहीं बदली। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के राइट्स नहीं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं खत्म हुई, और इलेक्शन रिगिंग को तो कोई अकाउंटेबिलिटी उसकी अभी तक उनके ट्राइब्यूनल्स में केसेस नहीं किए गए। तो हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तानीज यहाँ पे और वहां पे पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग बेचारे, आप वो इम्पैक्ट पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे जिसके लिए आपकी तंजीमों ने ये मंसूबा बनाया है। बिल्कुल। ये देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान में ये कवरेज जो नहीं होगी मीडिया पे, ये आपकी पहले ही खबर, वो आप बताएं लोगों को क्या कहना चाहती है। यही कि पाकिस्तान के मीडिया और चैनल्स को यही बता दिया गया है कि यू कैन नॉट कवर पाकिस्तान, अमेरिका की प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी ये एक, आई थिंक दिस इज अ मेजर ऑफ सक्सेस। और इनको नर्वसनेस के दौरे तो पड़ने शुरू हो गए है ना कि चैनलों ने नहीं दिखाना, तो इसका मतलब है कि यानी जंगल में मोर नाचा किसने, तो वाशिंगटन भी अगर जंगल है तो फिर से एक काम आएगा, वरना एक लम्हे दी लोग खबर लेंगे सुंदर से भी और सजाद बरकी से भी। जी बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया जिंदाबाद, खबर कोई रोक नहीं सकता। जी बहुत शुक्रिया सजाद बरकी साहब आपका, डॉक्टर सुंदर सली आपका भी, चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपका भी। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।